Hello students, today we will start chapter number 3, formulas in Excel. You know Excel is the collection of rows and columns. Okay, particular rectangle boxes called cell. Now formulas in Excel 2013. An Excel formulas always start with an equal sign. Okay. Formulas in Excel: values, cell reference, functions or operators. Now we will discuss in brief what is the meaning of this. First is values. There are two types of value, numeric or string. Numeric means we can write digits and string means we can write any words in string form. Now next is cell reference. You know cell reference means rows and column collection like B2, C2, Res2, C6, etc. Next is functions. In Excel lots of functions like sum function, average, minimum, min means minimum, maximum or count function. Next is operators like plus, minus, multiplication, division, less than, greater than, all are operators in Excel. Now we will see how to write formula using formula bar. First step is click the cell and write the formula. In case a column is E2, E3, etc. that is called cell reference. And second step is type the equal to sign in formula bar. In step 2 formula bar is there. And in step 3 continue type like B2 plus C2 plus D2 as shown. Now step 4 click or press enter. Then cell E2 will display the formula result, total result. Children, in this table all are cell and range reference like B5. How will we write B5 and how will we write C1 to C15, A5 to E15. This table shows cell and range reference. Okay, like suppose D res to D, all cell in column D will selected. That is called cell and range reference. Now students, today's topic is cell referencing. There are three types of cell referencing: relative referencing, absolute referencing, mixed referencing. Now we will discuss relative referencing. In relative referencing, whenever we copy a formula from one cell to another, the value of the formula always change with reference to the new cell. That is called relative referencing. Now we will see practically how we will apply relative referencing. This is the Excel sheet. Now I have written 3 numbers in number column and I will write total. Okay, write equal to sign. Then which function is applied? Sum function. Then cell referencing, select. Okay, A is the column and 1, 2, 3, 4, 5 all are rows. So select and enter. Okay, total number is 90. Same. Again I will write number, then write another number like 40, 60 or 30. Now copy the formula of column A, okay, and paste in column B. See children, आपको दिखेगा ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट आपको अलग ही दिखेगा. दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस. अगर हमने एक बार फॉर्मूला टाइप किया है तो आपको बार बार फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. हम फॉर्मूला को कॉपी करेंगे और किसी भी फॉर्मूला में जैसे ही हमने पेस्ट किया वो ऑटोमेटिक उसके रेंज के अकॉर्डिंग आपको आंसर शो करेगा. दैट मीन्स दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग, जिसमें आपको बार बार फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. ओके चिल्ड्रन, दिस इज़ अ रिलेटिव रेफरेंसिंग.
Okay children, next is absolute referencing. Absolute referencing is needed when we do not want the formula to change when copied from one cell to another. और आपको absolute referencing जब भी हम टाइप करेंगे तो उसके आगे आपको डॉलर साइन ऐड करना ज़रूरी है. सी, आई विल राइट two column numbers, number 1 2. Okay, now in B column 40 20 and 50. now अभी हम इसमें फॉर्मूला क्या एंटर करेंगे, सम फार्मूला, बट एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के, तो इसमें आपको डॉलर साइन ऐड करना पड़ेगा. इक्वल टू डॉलर साइन, कॉलम इज ए, देन रो इज 2, then again we will write dollar sign, then 2, then plus dollar sign A, then dollar sign 3. Okay, now plus dollar sign A, then dollar sign 4, then plus dollar sign A, then dollar sign 5, then you will press enter. Okay, answer is 100. अब हमने जैसे रिलेटिव रेफरेंस में कॉपी पेस्ट किया था, इधर देखो हम जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमको चेंज नहीं दिखेगा. उसमें जैसे उन्होंने सेल रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसका आंसर आया था, इसमें नहीं आएगा, इसका सेम आंसर आ रहा है, बट बोथ डिजिट्स आर डिफरेंट, तो आंसर भी उसका डिफरेंट आएगा. तो एब्सोल्यूट रेफरेंस हम जितनी बार भी लिखेंगे उतनी बार हमको फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा. सेम लाइक दिस इन कॉलम बी वी विल राइट फॉर्मूला इक्वल टू डॉलर साइन बी प्लस डॉलर साइन 2. ओके, सेम लाइक दिस. ठीक है, आपने ये फॉर्मूला टाइप किया, आंसर आया, दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, जिसमें हम जितनी बार भी हमको टोटल करना होगा उतनी बार हमको एडिशन करना होगा. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मिक्स्ड रेफरेंसिंग. नाम से ही आपको पता चल रहा है, मिक्स्ड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. ठीक है, इसमें समटाइम्स टू राइट अ फॉर्मूला वी यूज़ बोथ रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. सी, विद द हेल्प ऑफ इसमें हम टेबल्स लिखेंगे. आपकी चॉइस है 1 to 5, 1 to 10, बट मैंने 1 to 5 लिखा है. आपका होमवर्क 1 to 10 है. ओके, सो मिक्स्ड रेफरेंसिंग में हम रोज़ को और कॉलम्स में दोनों में से किसी भी कॉलम्स को अगर आपको एब्सोल्यूट बनाना है तो आप कॉलम्स को बनाओगे, रोज़ को बनाना है तो आप रोज़ को रिलेटिव बनाएंगे. ठीक है, अभी मैंने रोज़ को रिलेटिव बनाया है और कॉलम्स को एब्सोल्यूट बनाया. ओके, सो अभी मैंने नंबर टाइप किया, देन नंबर 1 2 3 4 देन 5. ठीक है, अभी मुझे बी कॉलम का इसका रिज़ल्ट चाहिए. ठीक है, अभी मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, इक्वल टू डॉलर साइन बी, सॉरी इक्वल टू बी, क्योंकि रो तो मेरी रिलेटिव है, और डॉलर साइन 2 क्यों लिखा, क्योंकि उसमें मेरा नंबर है, एंड मल्टीप्लाई A3. 1 multiplied by 1, answer is 1. Then ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू बी डॉलर साइन. देखो अभी मैंने सिर्फ पेस्ट किया तो वो ऑटोमेटिक आंसर दिया. अगर आपको फॉर्मूला टाइप करना है तो आप फॉर्मूला भी, बट मैंने अभी इसको रिलेटिव बनाया है तो आपको पूरे टेबल में सिर्फ एक ही बार फॉर्मूला टाइप करके आप पूरे 1 to 10 टेबल में कॉपी पेस्ट कर सकते हो. ओके, सी, मैंने सिर्फ एक ही बार टाइप किया, वो अपने आप ही मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पर हो रहा है. ठीक है, देखो अगर इसका आंसर चाहिए तो क्या लिखूँगी, इक्वल टू सी डॉलर साइन 2 मल्टीप्लाई A3, क्या आएगा A
5, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 3 जा 6 इक्वल टू $C, देन $2 मल्टीप्लाई A6, ओके। 2 4 जा 8, ओके। नाउ यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फॉर्मूला भी टाइप भी कर सकते हो, क्योंकि अभी रोज़ जो हैं वो क्या है, रिलेटिव, और कॉलम्स जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट। तो हम मिक्स्ड में दोनों का साथ में यूज़ करने के लिए हम कॉपी पेस्ट, सिर्फ एक ही बार आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सपोज़ मुझे D4 का रिजल्ट चाहिए, तो क्या आएगा, इक्वल टू $2, 2 क्यों लिखा, क्योंकि नंबर 2 रो में है, मल्टीप्लाई क्या आएगा, A4, ओके। 3 2 जा 6, नाउ $2 मल्टीप्लाई A5, okay children, understood how to write formula? Very good, okay। एक ही बार लिखो, और जहाँ आपको सीखने के लिए 5 to 10 टाइम्स आपको फॉर्मूला यूज़ करके भी करना है, ठीक है। अभी मेरे को इसमें फॉर्मूला लिखना होगा, तो क्या लिख सकती थी मैं, ई में इक्वल टू, अगर मुझे E3 में फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखूँगी, इक्वल टू E3 $2 मल्टीप्लाई A3, ओके। उसके बाद आपको पूरे टेबल को फॉर्मेट भी करना है, लाइक दिस, बॉर्डर, अलाइनमेंट, you know how to merge the columns, select the column and merge, click on merge and center। आपको तीनों रेफरेंस मुझे करके होमवर्क सेंड करना है, ठीक है। आपके बुक में जो एग्जाम्पल है उसको भी ट्राई करना है, और जो मैंने अभी टेबल्स किया है, टेबल्स को भी आपको होमवर्क सेंड करना है, okay children। This is the columns, okay। Thank you।